Very good morning to each and every one of you. I'm Sanjana and I'm heading Shilkar Law College. Today, our guest is Dr. Vikramaditya Rathod. He's an assistant professor of law at the coveted ILS Law College, Pune. Now, to tell you a little bit background for Vikram sir, we have known sir for the last 9 years now, and we started off as colleagues when we were in the Department of Law, Pune University, and gradually we started out with different adventures. I went to another university, and sir was in Pune University, and I think 2 years ago, sir joined ILS Law College, Pune. Sir holds a master's in law. He was a net JRF, which is something which only less than 1% of the population can crack it. He holds a doctorate in law from the coveted Department of Law, Pune University, under the guidance of Dr. Durgambini Patel, ma'am. Right now, she heads the NMIMS School of Law, all the 8 colleges in Mumbai. Sir's core area of law is jurisprudence and constitutional law, and he's a master in constitutional law. I feel his lecture is very mesmerizing, and I can assure you that when you leave this lecture today, you are going to be his biggest fan. And sir has given a lot of lectures in many, many coveted colleges across Maharashtra, Delhi, and Rajasthan. And I'm sure that with his experience and with his learning, you will take something positive from this lecture. So, Vikram sir, thank you so much for being here with us today in a virtual mode. Uh, we want to invite you here if possible. I know we are a very busy person in ILS and you do not have that time. But thank you so much for taking out the time today and to interact with our students with reference to constitutional law. So we will have the lecture for 35, 40 minutes, followed by a question and answer session. And Sure. if students have any questions, I would request you to please be on mute. And if you have any questions, you can put it on the chat box. We will answer your questions shortly. And we have Bansode sir here as well, sir. Vikram sir, if you can see it on your screen. Bansode sir Good has morning, here. sir. Yes, sir. Good morning, sir. Sir Bansode sir teaches here constitutional law. So this is Great. now a subject which is near to him as well. Yes. Yes. All right. Thank you, sir. Over to you, sir. Thank you. Thank you very much, Sanjana ma'am, Bansodi sir, and organizing committee and the authorities of the Silpkar Law College, who has given me an opportunity to interact with the technical engineer who wants to become a social engineer. सो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बिल्कुल ये जो बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है मुझे इन सबसे इंटरेक्ट करने की. एंड डियर स्टूडेंट, एज द टॉपिक विच इज एक्चुअली असाइंड टू मी इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्टेक्स्ट. आप सब लोग एलएलबी की क्लासेस जब भी आपकी स्टार्ट होगी या चल रही है, जो भी क्लासेस चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की या फिर इवन लॉ के किसी भी सब्जेक्ट के दौरान, आप एक बड़ा कॉमन पॉपुलर परसेप्शन आपके सामने आएगा कि लॉ कैन नॉट बी रीड विदाउट कॉन्टेक्स्ट. दैट्स अ वेरी पॉपुलर स्टेटमेंट कि लॉ को कॉन्टेक्स्ट के बिना नहीं समझ सकते. सेम लॉजिक, सेम परसेप्शन इज एप्लीकेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन आज जो हमारा टास्क है वो ये है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया, या आप अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हैं, उसके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि आपकी जो ड्राफ्टिंग है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को जब ड्राफ्ट किया गया, जो जो चीजें लिखी गई है उसमें कॉन्टेक्स्ट का कितना रोल है. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अभी ये जस्टिफाइड करने की कोशिश करूंगा. अगर मैं आप सब लोगों से एक क्वेश्चन ये करूं, हमारी सोसाइटी में एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक एविल है जो आज भी सोसाइटी में दिखता है. इट्स अबाउट द अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी के बारे में ये बोला जाता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. बिल्कुल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. लेकिन अगर मैं अपने स्टूडेंट से ये पूछूं कि आप अनटचेबिलिटी से आपके क्या मायने, आप अनटचेबिलिटी से क्या समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी, और कौन कौन से ऐसे इंस्टांसेस है जिससे आपको लगता है कि हाँ ये अनटचेबिलिटी हो रही है. अगर मैं अपने स्टूडेंट से पूछूं तो जनरल एक
बड़ा कॉमन आंसर आता है कि सर अगर कोई पर्सन एक पर्टिकुलर सो कॉल्ड लोअर कास्ट में पैदा होता है तो उनके साथ अनटचेबिलिटी होती है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर मैं आप सब लोगों से ये कहूं कि एक वुमेन है, एक महिला है, जिनको किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में एंट्री नहीं दी जा रही है और वो सो कॉल्ड अपर कास्ट से, लोअर से भी नहीं है, सो कॉल्ड अपर कास्ट से, उसे किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में एंट्री अगर नहीं दी जा रही है तो क्या ये अनटचेबिलिटी है? दैट इज द फर्स्ट थिंग। मान लीजिए आप में से कोई स्टूडेंट एलएलबी क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस करने जा रहा है, सो कॉल्ड अपर कास्ट से एक स्टूडेंट है और उन्होंने एक सीनियर को ज्वाइन किया, वो भी सो कॉल्ड अपर कास्ट से, और एक दिन आपने उनके सीनियर के कैबिन में, मान लीजिए उनका एक वाटर टैप या वाटर कूलर रखा हुआ है, आप अपनी बॉटल लेके गए और जैसे ही पानी भरने गए तो सीनियर, जो कि जानता है कि इवन यू आर फ्रॉम सो कॉल्ड अपर कास्ट और सीनियर खुद भी अपर कास्ट से, फिर भी उसने बोल दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टैप वाटर टैप से पानी लेने की। क्या ये अनटचेबिलिटी है? ये बड़ा क्वेश्चन है हमारे सामने। मैं आपको बताता हूं ये सारे इंस्टांसेस अनटचेबिलिटी के हैं। सबरीमाला केस में जस्टिस एक्स सीजे जस्टिस चंद्रचूड़ सर ने भी यही बोला था कि आप अगर वुमेन्स को टेंपल में या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में अलाउ नहीं करते हैं जेंडर के बेस पे, तो वो भी अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी सिर्फ कास्ट के बेस पे जनरेट नहीं हो सकता, दिस इज नॉट द ओनली रीजन। अनटचेबिलिटी जेंडर के बेस पे भी हो सकता है, हायरार्की के बेस पे, सीनियर जूनियर के साथ अगर थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर करता तो वो भी अनटचेबिलिटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मैं सर पॉपुलर परसेप्शन तो हम सब लोगों ने सुन रखा था कि भाई एक कोई कास्ट के बेस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तब अनटचेबिलिटी, और आप बोल रहे हो कि नहीं ये सारे इंस्टांसेस अनटचेबिलिटी के। ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का जो सोशल कॉन्टेक्स्ट जो था, जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग थे या हमारे जो लोग थे, हम जो इंडियंस थे 1950 से पहले, उन सबके साथ इस तरह के सारे डिस्क्रिमिनेशन होते थे। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बोला कि हमें ये हर तरह की अनटचेबिलिटी को रिमूव करना है, सिर्फ कास्ट के बेस पे नहीं, जेंडर के बेस पे भी। पहले था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन एट अ पब्लिक प्लेसेस, एट अ पब्लिक ऑफिसेस। अनटचेबल बिहेवियर किया जाता था। ये थोड़ी देखा जाता था कि आप लोअर कास्ट से हो अपर कास्ट से। इंडियंस आर नॉट अलाउड, दैट वाज आल्सो अनटचेबिलिटी। इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिए, जब ड्राफ्टिंग की गई आर्टिकल 17 की, तो आप अगर आपके पास बेयर एक्ट होगा या आप लेक्चर के बाद जब आप जाके देखेंगे, आर्टिकल 17 की लैंग्वेज ये है, ऑल फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी रिमूव्ड, ऑल फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी रिमूव्ड। यहां सिर्फ एक कोई खास अनटचेबिलिटी की नहीं, तरह तरह की अनटचेबिलिटीज हो सकती है, सबको रिमूव किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो वर्ड अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है ना, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाला हुआ। दैट इज द ओनली वर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। आप पढ़िएगा आर्टिकल 17, ध्यान से देखिएगा, अनटचेबिलिटी डबल इन्वर्टेड कॉमा का मीनिंग ही होता है कि इस वर्ड को कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में पढ़ना है। कॉन्टेक्स्ट चेंज होने के साथ साथ अनटचेबिलिटी के मीनिंग्स अलग 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 हो सकते हैं। आर्टिकल 17 इस तरीके से ड्राफ्ट किया गया, कॉन्टेक्स्ट को इंक्लूड किया गया, इसलिए फ्यूचर में भी मान लीजिए आने वाले टाइम में थर्ड जेंडर को अगर किसी पब्लिक ऑफिस में नहीं आने दिया जा रहा है, हो सकता है कोर्ट बोल सकती है कि दैट में आल्सो इंस्टांसेस ऑफ अनटचेबिलिटी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कॉन्टेक्स्ट चेंज होने के साथ अनटचेबिलिटी के मीनिंग्स भी चेंज हो सकते हैं, और इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए आपने अनटचेबिलिटी को डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाल रखा है। दैट इज द वन एग्जांपल। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, अगर आप लोग देखें, हम हमारे आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से रीड आउट करें आप, तो अगेन जैसे मैं अपने स्टूडेंट से अगर ये बात करता हूं, पूछता हूं कि भाई फ्रीडम का क्या मीनिंग है, फ्रीडम से रिलेटेड कोई आर्टिकल्स आप लोग बताइए।
तो जनरली सर आंसर आता है कि सर आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, मेजर एक आर्टिकल है हमारे पास। आर्टिकल 21 भी एक तरह का फ्रीडम है, लिबर्टी की बात करता है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। मोस्टली हम लोग फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, फ्रीडम्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और लिबर्टी के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। ठीक बात है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना जब आर्टिकल 19 आपका बन गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात कर रहा है, फ्रीडम ऑफ रिसाइड एनीवेयर की बात करता है, फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट की बात करता है, आर्टिकल 19 बन के तैयार हो गया। उस समय पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एकदम बड़े खुश हो गए कि भाई चलो हमने एक इंपॉर्टेंट जिसे हम फ्रीडम कंसीडर करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो हमने ड्राफ्ट करके रख दी। सब लोग खुश हुए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस समय एक पॉइंट रेज किया गया। पॉइंट ये था कि सर क्या इस देश के सारे सिटीजन्स को ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आप दे रहे हो आर्टिकल 19 की फॉर्म में, वो मिल जाएगी? ये बड़ा क्वेश्चन रेज किया गया कुछ लोगों ने। तो पूछा गया, डिबेट स्टार्ट हुई, भाई आप इस तरह का क्वेश्चन क्यों रेज कर रहे हो? तब बोला गया कि सर आप इस कंट्री का जो अगेन वल्नरेबिलिटी का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको ऑब्जर्व कीजिए। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी का मीनिंग क्या है? कॉन्टेक्स्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी का मीनिंग ये है कि भाई हमारी सोसाइटी में इवन प्रायर टू द 1950 कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हमारे समाज में कुछ तबके ऐसे, कुछ सेक्शन ऐसे जो सदियों से वल्नरेबल रहे, जैसे बच्चे, बॉन्डेड लेबर, बेगार सिस्टम जो चलता था, और वो औरतें जिनको प्रोस्टिट्यूशन जैसे कामों में झोंक दिया जाता था, फोर्सफुली कंपेल करके उनको डाल दिया जाता था। ये कमजोर वर्ग है, वल्नरेबल वर्ग है। कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, आपने आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे दिया, लेकिन समाज के वो ऐसे कुछ तबके अभी भी मौजूद है जो वल्नरेबल है। औरतें हैं जिनको प्रोस्टिट्यूशन में झोंक दिया जा रहा है, बच्चे हैं जिनको मजदूरी में डाला जा रहा है, और कुछ ग्रुप्स या कुछ फैमिलीज ऐसी है जो सदियों से बॉन्डेड लेबर, बेगारी का काम करती आ रही है। इन वल्नरेबल सेक्शन को अगर आप आर्टिकल 19 प्रोवाइड भी कर रहे हो तो क्या ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एंजॉय कर पाएंगे? नहीं सर। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, लेकिन आज भी वो लोग प्रोस्टिट्यूशन में झोंकी गई है वहां पे। आज भी बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, आज भी कुछ लोग हैं जो लंबे जनरेशन से किसी के यहां बेगारी कर रहे हैं। ये सारे लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एंजॉय तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक उन्हें उनकी स्लेवरी से आजाद आप नहीं करोगे। हम लोग तो स्लेव थे डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के, तो हमें तो फ्रीडम मिल गई, हम लोग 1918 को एंजॉय करेंगे। बट व्हाट अबाउट द स्लेव्स ऑफ द स्लेव्स? कुछ लोग ऐसे हैं जो स्लेव्स के भी स्लेव्स है, कुछ सेक्शन ऐसा है जो स्लेव्स का भी स्लेव्स है, उनका क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वल्नरेबिलिटी का ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसको समझा, इसको महसूस किया, और फिर उन्होंने बोला नहीं, ये जो सेक्शन है, अगर ये 1918 को एंजॉय करना चाहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, तो पहले उनको उनकी प्राइमरी जो स्लेवरी है उससे फ्रीडम दिलवाई जाए, फिर हम बात करेंगे। इसलिए हम लोगों ने इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए वी हैव ड्राफ्टेड आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप लोग आर्टिकल 23, 24 को पढ़ेंगे, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो ट्रैफिकिंग है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जो कि अल्टीमेटली जिसका सबसे बैड कॉन्सिक्वेंसेस प्रोस्टिट्यूशन की फॉर्म में आता है, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, बेगार सिस्टम, इन सब को हमारी जो गवर्नमेंट है खत्म करेगी। दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट, दैट इज ऑल्सो फ्रीडम।
सो अगर आप 19(1)(a) को ढंग से रीड आउट करना चाहते हैं तो बिना 23 एंड 24 के यू कैनॉट रीड आउट, यू कैनॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ 19(1)(a) या 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या फ्रीडम्स. सो दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी. जब तक आप वल्नरेबिलिटी का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझोगे तब तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रीडम का जो मीनिंग है ना वो क्लियर नहीं होगा. इसलिए आप लोग देखिए, अगर कहीं लेबर राइट्स की बात होती है, कहीं आपको आप अगर ये पिटिशंस भी देखेंगे जो चाइल्ड बाल मजदूरी की या चाइल्ड जो लेबर है वगैरह, उसकी जो पिटिशन या पीआई ड्राफ्ट की जाती है तो उसमें मोस्टली जो पिटिशनर हो आर्टिकल 23, 24 रीड विद आर्टिकल 19 का भी जिक्र करते हैं. वो ये बोलते हैं कि सर अगर आप लोग 19 को एंजॉय करवाना चाहते हो ना, ये लोग 19 को एंजॉय तभी कर पाएंगे जब आप 23 एंड 24 से इनको वो आप फ्री करें. दैट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी. अलग अलग तरह के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए. ऐसा एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आर्टिकल 25. आर्टिकल 25 को अगर आप लोग पढ़ेंगे इट्स वेरी सिंपल. जनरली हम लोग बोलते हैं आर्टिकल 25. अगर आप में से कोई मुझे बताएगा व्हाट इज आर्टिकल 25? आप लोगों ने मे भी पढ़ा होगा या सुना होगा. मेजरली आर्टिकल 25 किसके बारे में बात करता है? यस, आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये मेजरली फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है. ठीक है. सो अगर आप लोग अब देखिए, अगेन कॉन्टेक्स्ट कितना बड़ा रोल प्ले करता है उसको समझिए. अगर आप लोग आर्टिकल 25 को पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 25 इज ऑल अबाउट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेट, प्रोफेस द रिलीजन. सिंपल मीनिंग. अब हुआ ये कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय एक इश्यू रेज किया गया कि सर हमारे यहां फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैसे देना है. तो सब जगह पता किया गया कि भाई बाहर की जो कंट्रीज है वहां पे क्या सिचुएशन है. तो आप नोटिस करें कि बाहर की कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज जहां फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो दिया गया बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में, तो वहां पे जो ड्राफ्टिंग जिस तरीके से की गई है या वहां पे जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइड किया गया तो वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा या ऐसा फॉलो किया जाता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो कस्टम है वो ये है कि वहां फ्रीडम, फॉरेन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब फ्रीडम ऑफ वर्शिपिंग, WORSHIP, वर्शिप या वर्शिपिंग, WPING. अब कई लोगों ने बोला कि बिल्कुल सर फ्रीडम ऑफ वर्शिपिंग हमारे यहां भी इसको एडप्ट किया जाए. तब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ जो खास मेंबर जैसे कन्हैयालाल मुंशी, डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे डायरेक्टली नहीं करना है, हमें समझना पड़ेगा, हमें हमारे इंडिया का कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा. इंडिया का जो रिलीजियस और फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट है उसको समझे बिना आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन को डायरेक्टली ड्राफ्ट मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए. क्या किया गया? अब होता क्या, जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर फ्रीडम ऑफ वर्शिपिंग वर्ड यूज हो रहा है ना, फ्रीडम ऑफ वर्शिपिंग, तो फ्रीडम ऑफ वर्शिपिंग का मतलब ये होता है कि भाई आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस या रिलीजियस राइट्स को एंजॉय कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक इंस्टीट्यूशन चाहिए जहां पर आप वर्शिपिंग कर सको. जहां फ्रीडम ऑफ वर्शिपिंग है उसका मीनिंग ही यही है कि आपके लिए रिलीजन का मतलब ये होगा कि आप एक इंस्टीट्यूशन में जाएं और वहां पे अपने पूजा कीजिए, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कुछ भी. आप इसके बाहर जाके नहीं कर सकते. If you are using the word freedom of worshipping, if you are providing freedom of religion in the form of freedom of worshipping, it does mean that you will have to practice your religion only within the boundaries of that institution only. बाहर नहीं कर सकते आप, पब्लिक स्पेस में नहीं कर सकते अगर आप वर्ड यूज कर रहे हो फ्रीडम ऑफ वर्शिपिंग. अब इंडिया की बात है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स ने बोला कि सर अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमने वर्ड यूज किया ना, फ्रीडम ऑफ वर्शिपिंग, प्रॉब्लम हो जाएगी.
Because if you see the religious and philosophical context of the India, अगर आप भारत का कॉन्टेक्स्ट समझे, भारत का जो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट को समझे, तो हमारे यहाँ जो रिलीजन, जो डॉक्टर अंबेडकर ने भी बोला, इन इंडिया यू कैनॉट इमेजिन इंडिया विदाउट रिलीजन। आप इंडिया में किसी कोने में चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए, आपको रिलीजन सिर्फ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं दिखेगा। जैसे भाई आप लोग देखे महाराष्ट्र में एग्जांपल ले लें, गणेश महोत्सव होता है, हम लोग पब्लिक स्पेस में करते हैं। मोहर्रम का महोत्सव होता है, जो भी चीज है, प्रकाश पर्व हो रहा है, हमारे यहाँ नदी को भी पूजा जाता है, पेड़ को भी पूजा जाता है। वी हैव वेरी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन। रिलीजन हमारे लिए सिर्फ इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं है, सिर्फ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं है, रिलीजन चारों तरफ है। सो अगर आपने अपने इस कॉन्सेप्ट को, रिलीजन वाले को, सिर्फ फ्रीडम ऑफ वर्शिप लिखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर ये जो जितनी भी प्रैक्टिसेस बाहर हो रही है ना, ये परफॉर्म नहीं हो पाएगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे यहां जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइड किया गया, अगर आप लोग आर्टिकल 25 पढ़ेंगे तो उसमें पहला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, CONSCIENC, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का मतलब ये होता है कि आपकी आत्मा की स्वतंत्रता, द फ्रीडम ऑफ योर इनर, योर कॉन्साइंस। अगर आपको लग रहा है, आत्मा की स्वतंत्रता, अगर आप ये चाहते हो कि आप अपने ईश्वर को किसी इंस्टीट्यूशन में जाके उसको पूजा करनी है तो आप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे मैं अपने ईश्वर को पेड़ में, नदी में या पब्लिक स्पेस में कहीं महसूस करना चाहता हूं तो आप वहां भी कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी। एंड इन एडिशन टू दैट, इतना तो आपने दे दिया, इसके साथ एक और एक चीज, इंडियन फिलोसॉफिकल जो कॉन्टेक्स्ट है उसको भी ध्यान में रखा गया, क्योंकि इंडियन की फिलोसफी सिर्फ आस्तिकतावाद नहीं, एथिज्म नहीं, जिसको हम लोग थीज्म नहीं, एथिज्म को भी एक्सेप्ट करती है, यानी नास्तिकतावाद को भी। चारवाक ऋषि हुआ करते थे, तो उन्होंने इसलिए ड्राफ्ट किया फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज का मतलब कि आपको अपने ईश्वर को जैसे पूजा करनी है आप करिए, मंदिर में करिए, मंदिर के बाहर करिए, कहीं भी करिए, आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं भी करना है, इफ यू वांट टू बी रिमेन एज एन एथीस्ट, अगर आप नास्तिक बने रहना चाहते हैं तो उसकी भी स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 की लैंग्वेज पढ़िएगा आप लोग, स्टार्टिंग में लिखा हो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज का मतलब ये है कि हम लोगों ने इंडिया का जो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट है, इंडिया का जो फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज की। अभी रिसेंटली एक हाई कोर्ट ने भी बोला है कि आर्टिकल 25 में जो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज है, इट ऑल्सो इंक्लूड, यानी जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इट ऑल्सो इंक्लूड फ्रीडम नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, और वी कैन से, अगर आप लोग अथीस्ट बने रहना चाहते हैं, नास्तिक बने रहना चाहते हैं, तो उसका भी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25। क्योंकि हिंदुस्तान का जो रिलीजियस और फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट है वो रिलीजन के साथ साथ एथिज्म, थीज्म के साथ साथ एथिज्म, दोनों को अलाउ करता है, आस्तिकतावाद और नास्तिकतावाद। दैट इज द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, दैट इज द कॉन्टेक्स्ट अंडर विच आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड, और इसी कॉन्टेक्स्ट में समझा जाना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिए। जो सेकुलरिज्म की जो हम लोग बात करते हैं वो स्टार्ट यहीं से होता है। आपको मैं एक और एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। जो आर्टिकल 25 के बाद एक और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास आता है कि आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल आपका 48, आर्टिकल 48, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 48 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है कि आपका जो काउ स्लॉटरिंग है ना, उसको बैन किया जाए, काउ स्लॉटरिंग को रोका जाना चाहिए या उसको बैन किया जाना चाहिए। यानी सरकारें जो है वो अपने एफर्ट्स डालती रहे ताकि काउ स्लॉटरिंग को बैन किया जा सके। ये सिंपल आर्टिकल 48 है। अब कई लोग इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं आर्टिकल 48 को कि सर ये
एक खास रिलीजन या एक रिलीजन की जो सेंटिमेंट्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 48 ड्राफ्ट किया गया, जबकि रियलिटी ये नहीं है। कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। कॉन्टेक्स्ट ये था कि अगेन अगर आप लोग रिलेटेड टू द आर्टिकल 48 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब जाके आपको 48 ढंग से समझ में आएगा। कॉन्टेक्स्ट क्या था? अगर आप लोग आर्टिकल 48 को ढंग से पढ़ेंगे ना, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे वहां पे। आर्टिकल 48 में सबसे लास्ट में ये लिखा हुआ है कि काउ स्लॉटरिंग बैन करनी है। आर्टिकल 48 में जो फर्स्ट टू इंपॉर्टेंट डायरेक्शन जो लिखी गई वो ये है कि आपके यहाँ जो प्लीज मैम, कोमल प्लीज। सो आर्टिकल 48 जो आपका है, उसमें जो पहली जो इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है, पहली जो दो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो ये है कि आप आपके प्लीज कोमल मॅडम मीट व्हा. कोमल मॅडम, कोमल पडवळ मॅडम मीट करा. हाँ डिस्टर्ब होते तुमच्यामुळे. आर्टिकल 48, थैंक यू सर। सो आर्टिकल 48 में अगर आप लोग देखेंगे जो पहली दो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो है वो साइंटिफिक पैटर्न्स पे डेवलप होनी चाहिए, और जो ब्रीड्स है, जो आपके यहाँ जो ब्रीड्स है, जो एनिमल्स की जो ब्रीड है वो भी अच्छी हो, और एग्रीकल्चर जो है साइंटिफिक पैटर्न पे होनी चाहिए। अब इसमें काफी केसेस भी लाए गए कई बार, जब जैसे आप लोग देखेंगे है ना, कई स्टेट्स ने, जैसे बिहार में भी हुआ है, कुरैशी वाला केस बहुत बड़ा फेमस है। वहां पे वहां की जो गवर्नमेंट है वो काउ स्लॉटरिंग, उन्होंने बोल दिया था कि भाई हमारे यहाँ किसी भी तरह का जो भी काउ से रिलेटेड जो ब्रीड है, ऑक्स है, काउ है, जो भी है ना, बफेलो है, उनको नहीं मारा जाएगा। ऐसा आर्टिकल 48 अलाउ करता है, स्टेट लॉ बना सकता है, तो बनाया था। लेकिन आर्टिकल 48 को पूरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाना चाहिए। आप डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते कि हम एक हमारे राज्य में अब ये जो है गौ हत्या या जो भी है ये बंद हो जाएगी, डायरेक्टली नहीं कर सकते। आपको 48 का कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, तब जाके आप करोगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है उसको समझिए। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमारे आर्टिकल 48 में शुरुआत में लिखा हुआ है कि भाई हमारा एक स्टेट का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लगातार कोशिश करे कि आपके यहाँ जो एग्रीकल्चर साइंटिफिक पैटर्न पे हो, और जो ब्रीड्स है उनकी जो भी प्रोजेनी है एनिमल्स की वो डेवलप हो। अब ये इसलिए किया जा रहा था कि अगर देखिए, अगर किसी स्टेट में विदाउट एनी रीजन है ना, कि आप जैसे काउ स्लॉटरिंग है या जो भी सारी चीजें हैं, इसको अगर आप लोग कंटिन्यू चला ही जा रहा है, मामला चला ही जा रहा है, तो दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी, या फिर इसको हम लोग कहें कि एक जो बड़ा आर्गुमेंट रेज किया जाता है कि सर काउ स्लॉटरिंग या जो भी है ऑक्स वगैरह ये क्यों होना चाहिए, इसका एक जो आर्गुमेंट कुरैशी में दिया गया वो ये था कि सर हमारे यहां एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा इश्यू है। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा इश्यू है, और एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है कि आपके यहां जो ब्रीड है वो अच्छी हो। ब्रीड अच्छी होगी तो आपके यहां जो फसल है, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, वो बड़ी डेवलप होगी। और अगर आप चाहते हो कि ब्रीड अच्छी हो तो इसके लिए ये जरूरी है कि जो आपके जो ब्रीड है, जो भी एनिमल्स है, उनको एक न्यूट्रिशनल लेवल अगर उनका अच्छा होगा तो ब्रीड अच्छी होगी, ब्रीड अच्छी होगी तो साइंटिफिक लेवल पे एग्रीकल्चर होगी आपके यहां। और अगर आप चाहते हो कि ब्रीड अच्छी हो, इसके लिए ये न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, उनको खाना अच्छा खासा देना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ जो रिसोर्सेज है, फूड रिसोर्सेज है जानवरों के लिए, वो जानवरों के नंबर के प्रोपोर्शन में अगर नहीं है, प्रोपोर्शन में नहीं है, तो शायद जानवरों को अच्छा
न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो ब्रीड अच्छी नहीं होगी, ब्रीड अच्छी नहीं होगी तो साइंटिफिक एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर इकोनॉमी बूम नहीं करेगी। इसलिए ये बोला गया, बाद में केस भी हुआ था एक कुरैशी, उसमें बोला गया कि वो काउस या वो ऑक्सेस या वो जानवर जो बहुत बड़ी एज को पार कर चुके हैं उनकी स्लॉटरिंग अलाउ है। तो आप देखिए इस पूरे लॉ को, आर्टिकल 48 को आप अगर आप समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल 48 सिर्फ इसलिए नहीं है कि किसी भी जगह आप बिना किसी रीजन के रिलीजियस लाइंस पे एक लॉ इंट्रोड्यूस करके और आप बोल दो कि भाई नहीं आज से यहाँ पे जानवरों को काटा नहीं जाएगा, काटा जाएगा, व्हाटएवर। आर्टिकल 48 बोल रहा है कि आप कर सकते हो, काउ स्लॉटरिंग बैन कर सकते हो, लेकिन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रख के, आर्थिकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसको ध्यान में रखे बिना आप ये चीज नहीं कर सकते। बड़ा इंपॉर्टेंट। अलग अलग तरह के कॉन्टेक्स्ट है। एक और मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, बड़ा सुंदर एग्जांपल है। आप लोग जैसे ही एलएलबी में फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में जब आगे बढ़ेंगे आप लोग, तो आपको कुछ लॉज के बारे में पता चलेगा। जैसे आईपीसी, जो आज हम जिसे इंडियन पीनल कोड बोलते हैं, पहले जो इंडियन पीनल कोड बोलते थे उसको आजकल बीएनएस बोला जाता है, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे लॉज है। इनकम टैक्स एक्ट है, आधार एक्ट है, अलग अलग तरह के लॉज है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, सपोज एक कोई पर्सन है, उन्होंने इंडिया के हमारी किसी मिनिस्ट्री का कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर दिया और वो पर्सन किसी फॉरेन कंट्री में बैठ के ये काम कर रहा है। ऐसा बहुत होता भी है, इस तरह के एग्जांपल हमें दिखाई भी देते हैं। हमारे कंप्यूटर सिस्टम को क्रैश कर दिया है, हैक कर दिया, एक पर्सन जो बाहर बैठा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर वो पर्सन मेरी टेरिटरी से बाहर है और उस पर्सन के अगेंस्ट मुझे कोई ट्रायल या क्रिमिनल ट्रायल या कोई भी किसी भी तरह की जो ऑफेंसेस है उससे रिलेटेड ट्रायल स्टार्ट करनी है, तो मैं कर सकता हूं क्या? जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान में कोई पर्सन बैठा है और वो मेरे कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली उसको कर सकता हूं, क्योंकि जितने भी मेरे जो लॉज है, जैसे इनकम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट में लिखा हुआ है कि आप अगर कोई पर्सन साइबर ऑफेंस कर रहा है आपके हिंदुस्तान में बैठ के, तो आप उसके अगेंस्ट ऑफेंसेस चार्ज करके आप उसके अगेंस्ट ट्रायल स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर पर्सन वही ऑफेंस हिंदुस्तान से बाहर बैठ के कर रहा है मेरे अगेंस्ट, हिंदुस्तान के अगेंस्ट, तब आप ट्रायल स्टार्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? दैट इज द बिग क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तब अगर आप लोग आईटी एक्ट ध्यान से पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है यस आप कर सकते हो। ऐसा ही एक पर्सन जो हिंदुस्तान में, जैसे मान लीजिए हमारे एक बीएनएस में एक ऑफेंस हुआ करता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइगेमी, कि एक पर्सन जिसने यहाँ शादी की और वो फर्स्ट मैरिज यहाँ करके किसी दूसरी कंट्री में चला गया और वहां जाके उसने दूसरी मैरिज कर ली, तो क्या सर हम लोग बाइगेमी का ऑफेंस लगा सकते हैं उस पर? बिल्कुल लगा सकते हो। बीएनएस यानी आईपीसी जो पहले हुआ करता था उसका भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, उसमें लिखा हुआ है। कुछ खास तरह के ऑफेंसेस, कुछ खास तरह के मौके ऐसे हैं जहां पर आप हमारे जितने भी जो लॉज है उनका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन भी कर सकते हैं। सारे लॉज का नहीं, कुछ खास लॉज का, जैसे आधार एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जहां पर आपको लगता है कि कोई भी, जनरली ये होता है ना कि इंडिया का जो पार्लियामेंट्री लॉ है उसका एप्लीकेशन इंडिया पे ही है जनरल, लेकिन कुछ खास ऐसे मौके हैं जहां पर आपको ये जानने को मिलेगा कि इंडिया के बाहर भी उसका एप्लीकेशन पॉसिबल है। आप लोग पढ़ेंगे इन लॉज के बारे में। तब क्वेश्चन आता है कि सर आप ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज जो अप्लाई कर रहे हो, ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वाला जो कॉन्टेक्स्ट है, इसको क्यों, इस पे क्यों बात कर रहे हो? इसकी अथॉरिटी कहां से मिल रही? बिल्कुल मिलती है इसकी अथॉरिटी, अगर आप लोग आर्टिकल 245 पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 245 क्लियरली लिखा हुआ है, एनी पार्लियामेंट्री लॉ, है ना, which made for the territory of India, that law cannot be held as an invalid on the issues of extraterritorial operation of law। मतलब उसका मीनिंग ये 245 क्लॉज 1 में कि अगर कोई पार्लियामेंट्री लॉ जो भारत की टेरिटरी के लिए बना है
तो आप उसको डायरेक्टली, और अगर उसका टेरिटोरियल ऑपरेशन के बारे में लिखा है तो आप उसको इनवैलिड नहीं बोल सकते। आप डायरेक्टली उसको इनवैलिड नहीं बोल सकते। आपको देखना पड़ेगा कि उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन क्यों किया गया। अगर आपको ये लगता है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन जस्टिफाइड है उस लॉ का, तो आप उस लॉ को इनवैलिड नहीं कर सकते। जनरली कोई भी इंडियन लॉज है उसका एप्लीकेशन सिर्फ इंडिया पे है, बाहर नहीं है। ऐसे सारे लॉज को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन जब कोर्ट देखेगी कि हाँ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन किसी रीजन से किया गया है और अगर वो रीजन जस्टिफाइड है, तब कोर्ट बोलेगी कि नहीं ये लॉ इनवैलिड नहीं है, इसका हो सकता है। ऐसा क्यों? अगर आप लोग नोटिस करेंगे ना, देखिए मैंने जितने भी जो केसेस आपको बताए कि एक पर्सन बाहर से हैक कर रहा है, एक पर्सन इंडिया के किसी सिटीजन के साथ मैरिज करके किसी दूसरे पर्सन से मैरिज कर रहा है बाहर जाके, इन सारे केसेस में हमारे जो इंडियन सिटीजन है उनके इंटरेस्ट का वायलेशन हो रहा है। इसलिए आप लोग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन कर रहे हो उन लॉज का। और अगर आप लोग देखें इस चीज को कैसे जस्टिफाइड किया गया, आप अगर आर्टिकल 245 पढ़ेंगे ना, आप पढ़िएगा, कॉन्स्टिट्यूशन की ग्रामर भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 245 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री लॉ मेड फॉर द टेरिटरी, फॉर द टेरिटरी, इसमें जो वर्ड लिखा हुआ ना फॉर, FOR, कोर्ट के सामने ये इश्यू आया था कि आप जो लोग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन करवा रहे हो इन लॉज का, इसकी जस्टिफिकेशन कहां पे है? तो इसका जस्टिफिकेशन आर्टिकल 245 में जहां लिखा हुआ है एनी लॉ मेड फॉर द टेरिटरी ऑफ दिस कंट्री। फॉर का मतलब होता है इंटरेस्ट। फॉर का जो ग्रामेटिकल मीनिंग होता है, कोर्ट ने जीवीके इंडस्ट्री लिमिटेड करके एक फेमस केस है, उस केस में कोर्ट ने ग्रामर को पढ़ा, एनसाइक्लोपीडिया सामने लाई गई, डिक्शनरी सामने लाई गई, आर्टिकल 245 को समझने की कोशिश की गई, आर्टिकल 245 का कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश की गई, और उसमें से एक वर्ड निकल के आया फॉर। और फॉर का मतलब होता है इन द इंटरेस्ट ऑफ। यानी ये इंपॉर्टेंट जो क्लू मिल गया हमारे कोर्ट को, उन्होंने बोला कि अगर कोई ऐसा लॉ जो भारत के लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, तो ऐसे में उस लॉ का अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन हो रहा है तो भी चलेगा, आप ट्रायल स्टार्ट कर सकते हो उस पर्सन के अगेंस्ट। सिंपल वर्ड था फॉर, FOR, उसी से पूरा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन हो गया। आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे, आप उसमें लिखा हुआ है क्लियरली, इनकम टैक्स एक्ट में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, आधार एक्ट में भी लिखा हुआ है कि कुछ मामलों में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, BNS में तो है ही लिखा हुआ, IT एक्ट में भी लिखा हुआ, ऐसे बहुत सारे एक्ट है वहां लिखा हुआ है कि इसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन पॉसिबल है इन लॉज का। क्यों? क्योंकि ये लॉज डायरेक्टली इंडिया के सिटीजन की इंटरेस्ट के साथ कनेक्टेड है, और वो इसलिए क्योंकि द वर्ड फॉर इज रिटन देयर, आर्टिकल 245 में। आप पढ़िएगा। सो आप ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट था, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कॉन्टेक्स्ट, इसको भी शामिल किया गया कि जो अपराध है, जो ऑफेंसेस है, जरूरी थोड़ी भारत की जमीन पर ही हो, भारत की जमीन से बाहर भी हो सकते हैं और उस केस में हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल करना, इसके लिए आप ये चीज की। सो जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों से ये सारे जो डिस्कस कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के जैसे मैंने आपको आर्टिकल 19 रीड विद 23, आर्टिकल 17, आर्टिकल 25, आर्टिकल 245, आर्टिकल 48, ये सारे एग्जाम्पल बताने के पीछे का जो मेरा मकसद है वो ये है कि अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्टेक्स्ट के साथ समझने की कोशिश करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग है उसको कॉन्टेक्स्ट के साथ समझने की कोशिश करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस के जो प्रोविजंस है उनका अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन कैसे हो सकता है। इस पर बड़ी अच्छी बात की गई थी, अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो एक केस आप पढ़िएगा, केसी वसंत कुमार केस, केसी वसंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, रिजर्वेशंस पे केस है। उसमें जस्टिस प्रोबेबली जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी थे या जस्टिस सुब्बाराव, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, लेकिन इन दोनों में से एक थे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने बोला था कि हमारी सोसाइटी में जो मेरिट जो होता है ना, वर्ड मेरिट है ना, एक्चुअली उस केस में डिस्कशन हो रहा था रिजर्वेशन पे, रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है। उसमें दो तरह के आर्गुमेंट है ना कि रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए, कुछ लोग बोलते दिया जाना चाहिए, तो उस पर बड़ी अच्छी बात कही गई थी। अच्छा, एक आर्गुमेंट रेज हुआ था कि रिजर्वेशन के कारण मेरिट जो है वो पीछे रह जाती है, मेरिट के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो उस पर बड़ी अच्छी बात कही कोर्ट ने। जस्टिस प्रोबेबली सुब्बाराव या जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी थे, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, बट उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो इंपॉर्टेंट। वो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि देखिए हमारी सोसाइटी में मेरिट का जो
पॉपुलर मीनिंग है वो एक ही है, एकेडमिक एक्सीलेंस। कि भाई कोई पर्सन जो है 95% लेके आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अरे मेरिटोरियस बच्चा है ना। अब उसका कंपैरिजन कर रहे हैं जस्टिस, क्या बताया उन्होंने बोला कि दो बच्चों का एग्जांपल लिया उन्होंने। एक बच्चा जिसके पेरेंट्स अच्छे खासे पढ़े लिखे, जिसे इकोनॉमिकली सारी सहूलियत मिल रही है, उसे ट्यूशन मिल रहा है, उसे अच्छी स्कूल्स मिल रही है, वो अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, उसको सब कुछ मिल रहा है, और वो अपने 12th के एग्जाम में सारी फैसिलिटीज के बाद वो अपने 12th के एग्जाम में 80% मार्क्स लेके आया, अच्छे मार्क्स है, ही इज मेरिटोरियस अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर परसेप्शन। अब एक दूसरा बच्चा है जिसके बारे में उन्होंने बताया कि एक दूसरा बच्चा, एक एग्जाम्पल लीजिए, जिसके माता पिता बड़े रूरल एरिया में रहते हैं, गरीब बच्चा है, अपने पेरेंट्स के साथ खेती में काम करवाता है, ट्यूशन व्यूशन का कोई मामला नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ता है जहां पर भी सारी फैसिलिटीज नहीं है, किताबें भी पुरानी हैं, पुरानी किताबें अपने सीनियर्स की लेके आया, वो उसी से पढ़ रहा है, और वो भी 12th का एग्जाम साथ में दे रहा है, उसमें वो 60% लेके आया। पहला वाला बच्चा जो सारी फैसिलिटीज के बावजूद 80 लाया है, सेकंड बच्चा जिसके पास ये सारी फैसिलिटीज नहीं है और वो 60% लेके आया। तो अब बताइए, क्या सेकंड वाला बच्चा जो है वो, उसको आप नॉन मेरिटोरियस कहोगे क्या? नो, वो भी मेरिटोरियस है। अगर उसको ये सारी सहूलियत मिलती तो शायद वो भी 80 या हो सकता है 85 या 90 ले आता, पॉसिबल है। तो अब आप दोनों बच्चों के कॉन्टेक्स्ट को अगर हटा दो, जो पीछे उनके साथ जो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है, सोशल कॉन्टेक्स्ट है, जो कॉन्टेक्स्ट उसको हटा दो, तो आपके लिए फर्स्ट वाला बच्चा मेरिटोरियस होगा। लेकिन अगर आप सारे कॉन्टेक्स्ट को शामिल करोगे तब आप थोड़ा सोचोगे बोलते हुए कि सेकंड वाला नॉन मेरिटोरियस है या नहीं। सो अकॉर्डिंग टू जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी, मेरिट डजंट मीन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक एक्सीलेंस। मेरिट में और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे आप अपने आसपास आने वाले लोगों के साथ कितनी सिंपैथी रखते हो, अपने क्लाइंट्स के साथ कितनी सिंपैथी रखते हो, लोगों की शिकायतों को कितने अच्छे तरीके से सुनते हो। एक आईएएस ऑफिसर जो टॉपर है बट वो अपने ऑफिस में आने वाले लोगों के साथ सिंपैथी नहीं रखता, तो वो मेरिटोरियस नहीं है। लेकिन एक ऐसा ऑफिसर जो पीछे वाली रैंक में था बट वो अपने ऑफिस में आने वाले लोगों के साथ सिंपैथी रखता है, उनकी बात को सुनता है, उनको पानी पिलाता है, बिठाता है, तो जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी के अकॉर्डिंग वो मेरिटोरियस है, ना कि फर्स्ट वाला। सो आप देखिए, जो ये इंपॉर्टेंट है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बेस पे रिजर्वेशन को जस्टिफाइड किया गया, इसी पॉइंट के बेस पे, कि अगर आप किसी बच्चे को रिजर्वेशन दे रहे हो या किसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे रहे हो, तो इसलिए दे रहे हो ताकि आप उस कम्युनिटी में जो कुछ बच्चे हैं जो सच में नेचुरली मेरिटोरियस है, वो मेरिटोरियस बन नहीं पा रहे जस्ट बिकॉज दोस ऑल कंडीशन, उन कंडीशन को रिमूव करने के लिए रिजर्वेशन दे रहे हो। बाकी रिजर्वेशन का ताल्लुक किसी मेरिट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना नहीं होता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है ना आपको, कि आप ये देखिए कॉन्टेक्स्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। मैंने जो सारे आपको एग्जाम्पल बताए, उन एग्जाम्पल के पीछे और इंक्लूडिंग लास्ट वाला, वो इसलिए बताया कि कोर्ट कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रख के, कॉन्स्टिट्यूशन को जिस कॉन्टेक्स्ट में ड्राफ्ट किया गया है उसको ध्यान में रख के ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इंटरप्रेट करती है और उसके अकॉर्डिंग ही जजमेंट या फिर ऑर्डर या डिसीजंस दिए जाते हैं। ठीक है। सो आप लोग भी, जब भी आप लोगों को किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को या किसी जजमेंट को पढ़ने का मौका मिले, तो आप लोग समझने की कोशिश करें उसको कि ये किस संदर्भ में ये जजमेंट दिया गया, या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स है वो किस कॉन्टेक्स्ट में ड्राफ्ट किए गए। और अगर आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो रीडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना, वो अगर आपको समझ में आना स्टार्ट हो गया तो यू बिकम अ मास्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग लेक्चर। एंड आपके जो एग्जाम्पल्स वगैरह जो हम लोग ने यूज किए हैं, दे आर सो रेलेवेंट
स्पेशली इन टुडेज टाइम, जब अभी अभी हम लोग ने देखा है कि 2 और 3 days अगो हरियाणा के एक आईपीएस ऑफिसर ने एक एक्सट्रीम स्टेप लेकर के उन्होंने ही कमिटेड सुसाइड, एंड उन्होंने यही चीज बोली कि ही रोट 11 पेज सुसाइड नोट, जिसमें उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या क्या इंस्टेंसेस हो रहे थे, और उन्होंने अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को भी ये चीज बताई कि उनके साथ क्या क्या इंस्टेंसेस हो रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नोबडी कुड हेल्प हिम इन अ केस लाइक दिस। सो आज आपने जो भी हमारे साथ डिस्कस किया है, ये हम लोग एवरीडे बेसिस पे हम लोग उसे फेस करते हैं, बट इट इज ऑन अस कि हम लोग उसे जुडिशियल एस्पेक्ट या रूल ऑफ लॉ को देखते हुए, मद्देनजर देखते हुए उसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं ना सोसाइटी। आर वी एक्चुअली republic, socialist, as the word says in our constitution? So that is one question that we need to interpret on a daily basis. Thank you so much, Vikram sir. If you have any questions from the speaker, if anybody, you can raise your hands. Anyone? Yes, Santosh sir. Yes, Santosh. Santosh, you're not audible. It is still not audio You're audible Yes, now you are audible, Santosh. Yeah. for the insight, for the help, understandable. Okay. संतोष, हम प्रॉपरली नहीं सुन पा रहे, आप थोड़ा सा. Okay. Give me a minute. I'll attach Yes, a headset. now you are audible. Yeah. Okay. So it was really insightful. Okay. And thank you for that lecture. I just wanted to understand, like, if I'm really new for this. Okay. And like whenever I'm trying to read something, it's hard to get context of it, right? The way you explain the context behind the judgments or the law, it's really good, right? So where I can really try to get those context for whatever I'm trying to read, because that will help me understand it better. Yes, thank you संतोष. बेसिकली क्या, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो चीजें जो मैंने जिन आर्टिकल्स के पीछे जो कॉन्टेक्स्ट जो आप लोगों को बताया है ना, आपको किसी एक टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं मिलेगा, है ना. ऐसी कोई टेक्स्ट बुक नहीं जो आपको ये बताएगी कि इस आर्टिकल के पीछे ये कॉन्टेक्स्ट है, नहीं मिलेगा आपको. इसके लिए अलग अलग रिसोर्सेज है, ठीक है. जैसे अगर आप लोग देखें कि आपको, जैसे हम लोग लॉ पढ़ते हैं ना, तो लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी, उसके साथ साथ आपको पैरेलल लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पैरेलल लिटरेचर इन द सेंस, देखिए पहली जो चीज है कि अगर आपको जहां अपॉर्चुनिटी मिले, आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट्स है उसको आप लोग जरूर पढ़ें, ठीक है. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट्स है उसमें वो सारी चीजें डिस्कस की गई है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं इंक्लूड की गई वो भी डाली गई, वो सारी चीजें. जैसे मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल बताता हूं कि अगर आप लोग, जैसे अभी आजकल हमारे जुडिशरी में एक बड़ा इशू रेज हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है उस पर मैं आपको बता रहा हूं. हमारी जुडिशरी में एक बड़ा इशू रेज हो रहा है कि जो हमारी जुडिशरी में जो रिटायर्ड जजेस रिटायर होने के बाद उनके जो पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट है, उस पर बड़ा इशू रेज हो रहा है कि जो जजेस है वो लोग अपने आखिरी सालों में कुछ ऐसे जजमेंट दे रहे हैं जो प्रो गवर्नमेंट होते हैं. वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर हम प्रो गवर्नमेंट देंगे तो रिटायरमेंट के बाद हमें कुछ ऐसी पोजीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, गवर्नर वगैरह, है ना, कहीं के चीफ बन गए वगैरह कुछ, या किसी इंस्टीट्यूशन एनएचआरसी के हेड बन गए वगैरह, ये डायरेक्टली पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती है. तो वो ऐसा करना शुरू करते हैं. तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उस पर क्वेश्चन मार्क है. और हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में पोस्ट रिटायरमेंट पे कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है कि पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशन अगर कोई लेना चाहता है जज तो क्या करना चाहिए क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है. तो ये बड़ा इशू है. अब आप अगर उस समय जब हमारे आर्टिकल 124 ऑनवर्ड जो जजेस का सुप्रीम कोर्ट के जजेस या जो है उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है उनको पढ़ना शुरू करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, तो आप वहां देखेंगे वहां पे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स थे, उन्होंने इस पर बिल्कुल जिक्र किया था इसी पॉइंट पे, और उन्होंने बोला था कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज इंक्लूड करो जिसमें ये मेंशन करो कि इस तरह की जो अपॉइंटमेंट्स है वो या तो नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए. 1950 में जो आज सबसे बड़ा डिबेटेबल इश्यू, उसके बारे में 1950 में बात की गई थी, है ना. तो हालांकि वो पॉइंट उस समय लिया नहीं गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो जो चीज कही गई थी इंपॉर्टेंट नहीं, वो इंपॉर्टेंट, वो आज इंपॉर्टेंट है. सो एवरीथिंग विच इज डिस्कस इन
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज इंपॉर्टेंट, एक तो सबसे बड़ा सोर्स वो है। बाकी जो मैं आपको बोल रहा हूँ पैरेलल लिटरेचर इन द सेंस कि हमारे बहुत सारे जो स्कॉलर्स है लॉ में, जो लॉयर्स है, जजेस है, जैसे अगर आप लोगों को मौका मिले तो आप फली नरीमन सर का जो लिटरेचर है ना, जो उन्होंने लिखा लीड एडवोकेट फली एस नरीमन सर, है ना, उन्होंने काफी कुछ लिखा है, आप उनकी बुक्स को पढ़े। आप ग्रैनविल ऑस्टिन की जो दोनों बुक्स है, संजना मैम इन सारे लिटरेचर के बारे में जानते हैं, आप उनको पर्सनली भी जाके पूछ सकते हैं। आप ग्रैनविल ऑस्टिन की जो बुक है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे कमेंट्री लिखी है, बड़ी जैसे हम लोग को इतनी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन पे, और बड़ा इट्स लाइक ए नॉवेल, मतलब पढ़ने में मजा आएगा आपको। उसमें ऐसे ही लिखा, उन्होंने उनको फोन किया, उन्होंने ये रिप्लाई किया, फिर वो गाड़ी में निकले। इट वाज लाइक, मतलब कोई भी पढ़ सकता है, नॉन लॉ वाला, उसको जरूर पढ़िए। एक बुक है जैसे इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा उन्होंने लिखी है, ठीक है। अब वो बुक क्या है, 1950 से लेके लगभग 2010 तक इंडिया में जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, जो सोशल जो बड़े चेंजेस हुए, जो जो इवेंट्स हुए, उसके बारे में सब लिख रखा उन्होंने। तो होगा क्या कि जब आप इस चीज को पढ़ोगे ना, जैसे इंडिया आफ्टर गांधी पढ़ लिया आपने, तो अब आपको पता चल गया कि 1950 से लेकर अब तक क्या हुआ हिंदुस्तान में। फिर एकदम से जैसे आप कोई केस पकड़ोगे, है ना, कि भाई एक एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला वाला केस है, बड़ा फेमस है। उसमें मेजोरिटी ने क्या बोला था, मेजोरिटी ने ये बोला था कि इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग आर्टिकल 21, जो बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है, राइट लिबर्टी से रिलेटेड, हमारा राइट टू लाइफ, मेजोरिटी कोर्ट ने बोला था कि आप उसको भी सस्पेंड कर सकते हो इमरजेंसी के समय। अब ये जजमेंट दिया गया था, हम हमारे दिमाग में आता है ऐसे कैसे दिया गया। तो अब आपको कॉन्टेक्स्ट कैसे समझ में आएगा, आपने जब इंडिया आफ्टर गांधी पढ़ी है, उसमें उन्होंने इमरजेंसी के बारे में पूरा लिख रखा है। उसमें उन्होंने बताया कि 1975 के आसपास हिंदुस्तान में अपना नेशनल इमरजेंसी लगी थी इंदिरा जी के समय, और उस इमरजेंसी में हमारी जुडिशरी जो है वो बड़ी सप्रेस कर दी गई थी, जुडिशरी खुद डर रही थी। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट दैट जजमेंट वाज डिलीवर्ड। तो जब तक आपको ये कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है ना, ये जो चीजें हो रही है उसको आप जस्टिफाई थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए पैरेलल लिटरेचर जितना आप पढ़ सकते हो, मैंने बताया ग्रैनुअल ऑस्टिन की बुक जरूर पढ़िए, इंडिया आफ्टर गांधी पढ़िए, फली नरीमन सर का लिटरेचर पढ़िए, और जितने भी जो लॉयर्स और इनिशियल लेवल जो अच्छे लॉयर्स है, जजेस जो भी है हमारे, उनकी बायोग्राफीज आप जरूर पढ़ें, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट एमसी चागला सर की है, और भी बहुत सारे लोग हैं, जस्टिस कृष्णा अय्यर है। तो उन्होंने लगभग 50 से 70 के बीच में क्या क्या हुआ, किसी जजमेंट को देते समय उनका दिमाग क्या बोल रहा था, है ना, वो सारी चीजें उन्होंने डिस्कस की है। मैं अभी मैं संजना मैम के साथ भी शेयर करना चाहूंगा। मैं रिसेंटली एक बड़ा अच्छा एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बड़ी अच्छी चीज बताई गई थी कि एक किसी पर्सन ने सर्वे किया ना, एक हमारे यहाँ होता है पैरोल का एक प्रोविजन होता है कि भाई कोई पर्सन जेल में लंबे समय तक ठीक ठाक अगर काम कर रहा है, शांति से रह रहा है, तो उसको पैरोल, इट्स लाइक अ बेल, मतलब थोड़े समय के लिए छोड़ा जा सकता है उसको, है ना। तो किसी फॉरेन किसी बाहरी देश का सर्वे है, उसमें जो पर्सन ने जिसने सर्वे किया उन्होंने ये देखा कि जजेस जब पैरोल के मामले डिसाइड करते हैं ना, तब उसमें अर्ली मॉर्निंग 8 बजे से 9 बजे के बीच में जितने भी पैरोल के जो जजमेंट जो दिए जाते हैं ना, उसमें रिलीफ मिलती है 8 से 9। 2 से 3 में रिलीफ मिलती है, 12 to 1 में रिलीफ कम मिली है। फिर रीजन बताया गया कि 12 to 1 जजेस को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है, किसी को भी लग रही होती है, जजेस को क्या, किसी को भी। तो जब इंसान थोड़ा सा हंगर है ना, वो खुद मतलब परेशान रहता है कि हटाओ यार नहीं देनी। लेकिन 2 to 3 रिलीफ है, एकदम खुश है, खाना खा चुका है, 8 to 9 ब्रेकफास्ट करके आया है, तो उस समय खुश है, वो आराम से उसको वो देगा। एक बड़े हमारे यहाँ अच्छे जुरिस्ट हुए डॉर्किन, उन्होंने बोला है कि दिन का किसी जज का जो जजमेंट है ना, वो कैसा होगा इस पे तय होता है कि उसने सुबह क्या ब्रेकफास्ट किया। कॉन्टेक्स्ट इस बीवी से अगर झगड़ा सुबह सुबह तो जी, बीवी से झगड़ा हुआ होगा सुबह सुबह तो भले तो ब्रेकफास्ट ये अलग अलग, ये सोशल कॉन्टेक्स्ट है, इसको आप पढ़ोगे, आप सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस में ये सारी चीजें आती है भाई। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आप लोग पढ़ेंगे लॉ में, मैम डिस्कस करेंगे आप सब लोगों से ये सारी चीजें। सो इसीलिए मैं आपको कॉन्टेक्स्ट भी जोर दे रहा हूँ, पैरेलल लिटरेचर पे आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, तभी आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, यस, एनी अदर क्वेश्चन?
Thank you, sir. सर यस इकबाल प्लीज। यस, गुड आफ्टरनून सर। सर एक ऐसा क्वेरी था, लाइक आपने जैसे बताया आर्टिकल 19 मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए आर्टिकल 24 एंड 25 मुझे समझना थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सो ऐसा मीन्स हमें थोड़ा सा ऐसा कौन सा वे है या थोड़ा आपका गाइडेंस चाहिए कि सारे आर्टिकल्स के रेफरेंस के थ्रू आप बोले कि ये ऐसा ऐसा डिसीजन आना चाहिए, तो हमें कैसे थोड़ा सा इजी रहेगा अंडरस्टैंड या थोड़ा याद रखने के लिए कि ये आर्टिकल इस आर्टिकल से मीन्स मैच होता है, या इस आर्टिकल को समझने के लिए ये सारे आर्टिकल्स या ऐसे कॉन्टेक्स्ट समझना है, थोड़ा सा उसके लिए गाइडेंस चाहिए सर। कैसे आप याद रखते हैं या फिर हमें कैसा उसमें याद रखने के लिए कौन सा वे यूज देखिए करना इसका चाहिए? एक ही तरीका, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए क्या है कि या तो हम 5-6 साल से हम लोग भी पढ़ा रहे, हमें भी सारे आर्टिकल्स याद नहीं है और किसी को भी नहीं याद होता है। ऐसा कोई ये मान के ना चले कि एक एक चीज सब कॉन्स्टिट्यूशन की सबको एकदम वो कंठस्थ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप बार बार एक चीज को पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा। आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप लोगों के लिए अभी 19 मतलब आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड ये याद रखना एक टास्क है आप लोगों के लिए। ये हम लोगों के लिए भी टास्क था। उस समय हम भी कंफ्यूज होते थे कि 19 अच्छा इसका जजमेंट क्या है, ये है। लेकिन क्या होता है कि जब आप प्रोसेस में होते हो ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उसमें भी आप बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे जिसमें इन चीजों का रेफरेंस आएगा बार बार। तो जब आप इन चीजों को पढ़ोगे, जैसे आप मीडिया लॉ मान लीजिए पढ़ेंगे, तो मीडिया लॉ में अपने आप आर्टिकल 19 का रेफरेंस आएगा। आप लेबर लॉज पढ़ोगे मान लीजिए तो आर्टिकल 21 का रेफरेंस आएगा, आर्टिकल 23 का रेफरेंस आएगा, आएगा ही आएगा। तो उस समय क्या होगा कि जब इन चीजों को बार बार आपके सामने आएगी तो अपने आप याद हो जाएगा, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। बाकी सबसे पहली चीज तो होती है कि आप जो क्लास में आप लोग पढ़ते हो वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, फिर आप एग्जाम में लिखते हो, ये सेकंड, फिर आप इसको तीसरी जगह रेफर करते हो, है ना, किसी और सब्जेक्ट में पढ़ते हो। तो ये प्रोसेस है, इस पे आप बिल्कुल मत घबराइए कि अभी याद नहीं है तो पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, ये धीरे धीरे हो जाएगा और इस पे हम लोग कभी होगा तो एक सेपरेट एक पूरा हम लोग सेशन कर सकते हैं इस पे बात में कि कैसे किन किन चीजों को ध्यान में रखना। ठीक है, यस सर, घबराने थैंक की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल मत घबराइए, अपने आप हो जाएगा, पार्ट है ये, प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है, यस। और कोई ओके। क्वेश्चन? Good afternoon, sir. This is Sachin. Actually, हर मंथ में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बुक्स तो है हमारे पास, बट दे गेट ओल्डर। तो ऐसा कोई साइट है लॉ सीखो या देखिए ऐसा आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जो एक बेयर एक्ट जो होता है हमारा, एक सबसे बेसिक जो चीज होती है ना, बेयर एक्ट जो है वो आप हर साल चाहे तो चेंज करते रहें। सिंपल एक छोटा सा एक रहता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी जो लॉ है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए वो उसमें कंटिन्यू आप लोग जो भी पब्लिशर से वो डालते रहते हैं, है ना, ओके कि भाई आप इस, यस, एज अ सब्स्टिट्यूशन वो ले सकते हाँ हाँ बिल्कुल, उसको अपडेट किया जाता है, उसको हर साल अपडेट किया जाता है। इवन आप लोग पार्लियामेंट की जो हमारे जो राज्यसभा है या पीआरएस एक जो वेबसाइट है, आप उसको भी सर्च करते रहेंगे तो उस पर भी लिखा आता रहता है लगातार कि भाई हाँ इस लॉ में ये सेक्शन ऐड किया गया है या पुराने इस सेक्शन को रिमूव किया गया है। बाकी आप लोग किसी भी पब्लिशिंग हाउस से कांटेक्ट कीजिए, नॉर्मली आप किसी भी लॉ बुक्स पे, ये जो सेंटर पे चले जाइए, जो लॉ की किताबें आपको मिलती है, आप लोग उनसे अपडेटेड जो बेयर एक्ट है वो लेते रहें। आप 5-6 महीने में या 7-8 महीने में, तो उसमें सब चेंजेस बतौर लिखा जाता है कि आप ये हटाया जा चुका है, ये नया ऐड किया गया, तो उसमें घबराने की आपको जरूरत है, वो मिल जाएगा अपडेटेड। इवन बुक्स भी जो है वो लगातार बुक्स थोड़े समय के बाद होती है, लेकिन उसमें भी नए नए जो भी एडिशन है वो आते रहते हैं, जिसमें पुरानी चीजें हटाई जाती है और नए नए जो केस लॉज है, नई चीजें वो इंक्लूड की जाती रहती है। ठीक है, तो उसमें आपको कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि ऐसा ऐसा कुछ इश्यू होगा। यस, थैंक Okay, sir, I think we have taken a lot of your time today. yes, And no. Vikram sir, again, thank you so much on behalf of the management, on behalf of Shilkar Law College. And I hope that we have continued association like we had over the years. And we hope that you earnestly come to the college sometime if your timing and your schedule allows. And sir, we are very soon going to have our first national seminar
We are just waiting for the proper time to conduct it because this is the first year and we are just waiting for the dates from Pune University regarding examination. So once that is that is a little bit sorted, we will have the first national seminar. So we would request you to be our resource person on that seminar as well. Thank you, So ma'am. that the knowledge. It would become an honor for me. Thank you, ma'am. Thank Thank you, you very thank much. you, thank you, Vikram sir, for always being with us. And may you always flourish with constitutional ideas Thank you, and ma'am. values, and may you always cherish these ideas with this passion, and may you always share this knowledge and information with all of us students, not only with our students, but also with the larger community interest at all for the welfare purpose. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, Sanjana ma'am, Bansodi sir, Thank you, sir. and rest of Thank the you, sir, faculties for and the your management valuable of the guidance Silpkar and Law time. College for this opportunity. And surely, Sanjana ma'am, आप जब भी कहेंगे, I will be there, and Yes. हम लोग ऐसा coordinate way में और इन सारी चीजों को करते रहेंगे. Thank you very much, Thanks, sir. and Thank thank you, students. Thank you very much. Thank you, Vikram sir. Thank Take you. care. Thank you. Good day. Thank you, Vikram sir. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you, all of you. Thank you all. We'll end the session right now. Thank you. Yes.